Hello everyone. Today we are going to discuss about ethers. Ethers are certain compounds which have carbon-oxygen-carbon linkage. That means the bond exists between carbon to oxygen to carbon. Now in ether linkages, we know that this carbon exists from an alkyl group. So the ether, when it has same type of alkyl group on both the side of oxygen atom, they are symmetrical ethers like ROR. It is a symmetrical ether. If it is ROR dash, then it is an unsymmetrical ether. Now to study about ethers, we need to study the methods of preparation, the chemical reactions, and let us compare the reactions with alcohols and phenols which we have already seen. Hello everyone. In this session, we are going to discuss about ethers. What is an ether linkage? A carbon, oxygen and carbon linkage is known as ether linkage. Now, how can we prepare compounds containing certain carbon-oxygen-carbon linkages? See, if I have one alkyl group R on both the side of the oxygen atom and the same alkyl group, such an ether is known as symmetrical ether. And if I obtain ROR dash, that is two different types of alkyl groups, this is known as unsymmetrical ether. Now, what are the methods of preparation of ethers? Number one, I can say from alcohols. From alcohols by the method of dehydration. Now, we have seen that dehydration of alcohol gives us alkene. We have seen that. Now, dehydration of alcohol gives us ethers as well, along with alkene, but at a different temperature, at a lower temperature. So, if I say alcohol like ethanol, CH3, CH2OH is ethanol. At two different temperature, it gives us two different products. So at a temperature of 443 Kelvin in acidic medium in presence of H2SO4, we will get in presence of protic acid. This protic acid can be H2SO4 or it can be H3PO4 as well. So we have taken H2SO4 as an example at 443 Kelvin, higher temperature, we obtain elimination product CH2 double bonded CH2. At a lower temperature in presence of H2SO4, 413 Kelvin, where the activation energy is less, we can see it gives ether. So C2H5 OC2H5 because it is CH3CH2 on both the side of the oxygen atom. Now let us look at the mechanism of the formation of ether. Well, in the mechanism we can see 2 moles of alcohols reacting in presence of concentrated H2SO4 at 413 Kelvin, giving ether. So 1 mole of ethanol is getting protonated. Okay. So this is the oxygen having lone pair. साथ में H plus is there. Just a minute. So साथ में H plus is there for protonation because medium is acidic. So this H plus is abstracted by the lone pair over oxygen, forming protonated alcohol. We have seen this before also, known as oxonium ion. If you have followed my videos, we have already discussed that alcohols have both the nature, nucleophilic as well as electrophilic. So this behavior we are seeing
where alcohol is capable of abstracting a proton, forming oxonium ion, which is known as protonated alcohol. This protonated alcohol behaves as an electrophile, where we can see another mole of alcohol, CH3, CH2OH, acts as a nucleophile. So the one which I am drawing now is acting as a nucleophile. क्योंकि इसके पास क्या है? इसके पास तो है लोन पेयर. तो ये लोन पेयर जो है, ये लोन पेयर के वजह से इट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल and it is attacking this carbon जिसका delta positive character है, because neutral water molecule is a good leaving group. mechanism में अगर arrow नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है. इसीलिए whenever you are answering, please do give arrows for mechanism. So follow this molecule which I am drawing, CH3, CH2. See, neutral water molecule has already left and I'll write it. This carbon is forming a bond with this oxygen. It is forming a bond with this oxygen. And this oxygen was having hydrogen. So this is the hydrogen. And a lone pair remaining. And lone pair से अटैक हुआ है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज. साथ में CH2, CH3. And it has given out H2O, neutral water molecule. अब ये neutral water molecule तो इसका एम्फोटेरिक नेचर है, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन भी कर लेता है. तो लोन पेयर अबव ऑक्सीजन एब्स्ट्रैक्ट्स द प्रोटॉन एंड मेकिंग ऑक्सीजन न्यूट्रल, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता है. इसीलिए क्या होता है, यहाँ पे ये H2O तो H प्लस ले लेता है एंड यहाँ पे CH3, CH2O becomes neutral now, gets back the lone pair CH2, CH3 plus H3O plus, H2O taking H plus forms H3O plus. आप अगर ध्यान से मैकेनिज्म को देखें इन अ कॉम्पैक्ट मैनर तो आप देखेंगे कि ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है ये वाले कार्बन के ऊपर, ये अगर लेस हिंडर्ड हो तभी ये फेवरेबल है, बिकॉज अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल एंड लीविंग ऑफ द लीविंग ग्रुप ये ना साइमल्टेनियसली हो रहा है एंड ये SN2 मैकेनिज्म है यहाँ पे. इसीलिए ना ये कार्बन जो मैंने येलो से हाईलाइट किया, ये कार्बन लेस हिंडर्ड होना है. तो लेस हिंडर्ड मतलब 1 डिग्री अगर है तो फेवरेबल है, लेकिन अगर ये कार्बन 2 डिग्री या 3 डिग्री होता है तो रिएक्शन पाथवे SN1 होके जाएगा एंड द मैकेनिज्म विल बी डिफरेंट. सो दिस कार्बन should be less hindered and so this is preferred for 1 degree only, because the reaction mechanism is SN2 mechanism. Now we can see Williamson's synthesis for the preparation of ether. Williamson's synthesis is applicable for preparing both symmetrical as well as unsymmetrical ethers. यहाँ पे एक सोडियम एल्कोक्साइड लिया जाता है एंड इफ आई अज्यूम कि R डैश का बल्क फैक्टर R से ज़्यादा है, ये बल्क फैक्टर ज़्यादा है, तो सोडियम एल्कोक्साइड ऑक्सीजन का लोन पेयर है, रिएक्ट्स विथ एल्काइल हैलाइड RX के साथ रिएक्शन करता है, जहाँ पे ये RX सबस्ट्रेट जैसा काम करता है और सोडियम एल्कोक्साइड न्यूक्लियोफाइल जैसा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पे डेल्टा माइनस और डेल्टा पॉजिटिव बिकॉज ऑफ द 2 एंड्स यहाँ पे अटैक होता है और X माइनस लीव्स. तो ये देखने में तो SN2 रिएक्शन ही है, ये SN2 रिएक्शन है जहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है सोडियम एल्कोक्साइड. याद रखिएगा कि ये
SN2 है, इसलिए ये जो सबस्ट्रेट है ये हमेशा लेस बल्की होगा, तो ही आपका ईथर बनेगा। अगर ये मोर बल्की हो जाएगा तो फिर ये एल्कीन हो जाएगा एज मेजर प्रोडक्ट। तो जहाँ पे ईथर होता है वहाँ पे एल्कीन भी बनता है, और जहाँ पे एल्कीन बनता है वहाँ पे ईथर भी बनता है। बट विच वन विल बी द मेजर प्रोडक्ट डिपेंड्स ऑन द बल्क फैक्टर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे R-OR ये बन गया आपका ईथर। तो ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे बल्की न्यूक्लियोफाइल और लेस बल्की सबस्ट्रेट है। टर्शियरी अगर है तो ऑब्वियसली इसका बल्क फैक्टर ज़्यादा ही है, तो ये है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड सोडियम एल्कोक्साइड है। तो दिस इज माइनस एंड प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल है। और लेस बल्की माने मिथाइल इफ आई कैन टेक, देन ये रिएक्शन और भी इजी हो जाएगा। तो दिस इज एक्टिंग एज योर न्यूक्लियोफाइल and this is acting as the substrate which is less bulky. तो reaction क्या होगा? This will attack the carbon and Br minus will leave. ये है reaction, SN2 mode of the reaction. तो product क्या बनेगा? Product बनेगा ऐसा, CH3 C CH3 CH3 ऑक्सीजन कार्बन को अटैक करता है, तो ये कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया एंड NaBr इज फॉर्म्ड एज द साइड प्रोडक्ट। तो ये है आपका ईथर फॉर्मेशन, यही है आपका मेजर प्रोडक्ट। ये एल्कीन का पॉसिबिलिटी इसमें कम है, लगभग नहीं है। लेकिन अगर ये सबस्ट्रेट मोर बल्की होता है तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Suppose the sodium alkoxide is less bulky, ठीक है, इसमें मिथाइल डाल दिया, इसमें मिथाइल को डाल दिया, तो यहाँ पे माइनस एंड प्लस, और यहाँ पे क्या है, मोर बल्की। तो CBr एक CH3 है, दूसरा यहाँ पे CH3 जो है उसको ऐसे दिखाते हैं CH2 और H, और यहाँ पे CH3। तो अगर ऐसा है तो कैसा होगा रिएक्शन? देखिए, दिस नाउ एक्ट्स एज अ बेस, क्योंकि हमने देखा है कि बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसेस। दोनों का टेंडेंसी रहता है बेस और न्यूक्लियोफाइल जैसा काम करना, लेकिन ये जिसके ऊपर अटैक कर रहा है वो अगर लेस बल्की है तो रिएक्शन विल बी SN2, और वो अगर मोर बल्की है तो एलिमिनेशन इज फेवर्ड। ये देखिए, ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होता है, फिर आके ये डबल बॉन्ड बनाता है और Br माइनस निकल जाता है। तो ये एलिमिनेशन पाथवे हुआ। अब ये रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन हुआ एंड मेजर प्रोडक्ट विल बी द एल्कीन। तो CH3 C, यहाँ पे CH3 साथ में डबल बॉन्डेड CH2 एंड यू विल गेट यहाँ पे साइड प्रोडक्ट CH3। ऑक्सीजन क्या करता है? प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो CH3OH मिलता है। मीडियम में Na है तो ये ONA बन जाएगा, ये बन जाएगा ONA। तो this is your major product, this is your major product, this is your major product. Alkene is the major product because the reaction is now elimination reaction, it's no more a substitution reaction. और ये substitution से elimination क्यों हुआ? क्योंकि the substrate is more bulky, so choice of the substrate is very very important here. यहाँ पे अगर हमें फिनॉक्साइड आयन का इस्तेमाल करना है, सो एल्कोक्सी बेंजीन अगर तैयार करना है वाया विलियमसन। एल्कोक्सी माने दिस इज योर बेंजीन रिंग, यहाँ पे OR है तो ये एल्कोक्सी बेंजीन बन गया। इसको अगर विलियमसन से तैयार करना है तो हमारा क्या रास्ता होगा? Take a less bulky substrate and more bulky nucleophile. तो फिनॉक्साइड
होगा सोडियम फिनॉक्साइड, जो ये रहा आपका सोडियम फिनॉक्साइड, एंड यू कैन टेक RX ऐसे। तो रिएक्शन पाथवे कैसा होगा, ये अटैक हुआ ना आपका, ये लेस बल्कि है, तो यू कैन प्रिपेयर alkoxy benzene via Williamson's synthesis in this method. Physical properties of ethers में basically we are going to discuss two things. One is boiling point and the other is solubility. Now boiling point का अगर डेटा देखें तो comparable molecular masses का, जैसे N-pentane CH3 CH2 whole thrice CH3, ये रहा N-pentane, इसका boiling point है 309.1 Kelvin, and ethoxyethane C2H5O C2H5, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 307.6 केल्विन। तो लगभग इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक जैसा, या आई विल से वेरी क्लोज है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है द वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर्स। ईथर्स आर वेरी वीकली पोलर, जिसकी वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के आपस में जो इंटरैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है नहीं, इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट्स है दे आर ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्केन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। लेकिन ऑफ कोर्स इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम ही होगा। मानिए ब्यूटान 1-ऑल CH3 we are taking as an example, CH3 CH2 whole thrice OH, तो क्या लिया एग्जाम्पल में? ब्यूटान 1-ऑल। इसका बॉइलिंग पॉइंट है 390 केल्विन, तो काफी डिफरेंस है। 307.6 और 390 दोनों में काफी अंतर है। इसका रीजन है द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्टिंग बिटवीन द alcohol molecules. Intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding के कारण ये associated molecules फॉर्म करता है, मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो associated molecules मतलब जुड़ा हुआ है, इंटरैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग है। So the interaction is intermolecular hydrogen bonding, जिसके वजह से the boiling point of alcohols are greater than that of ethers. The boiling point of alcohols are greater than that of ethers because there exists intermolecular hydrogen bonding between the alcohol molecules. अगर हम solubility की बात करें तो इतना अंतर है नहीं अल्कोहल और ईथर के solubility में। The reason is ethers can form intermolecular hydrogen bonding with H2O molecules. It can form intermolecular hydrogen bonding with H2O molecules, जिसकी वजह से the solubility of ethers are quite strong and it's good इन पोलर सॉल्वेंट वाटर, जैसे कि अल्कोहल्स में देखा जाता है। अल्कोहल्स ऑल्सो आर केपेबल ऑफ फॉर्मिंग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O मॉलिक्यूल्स। यहाँ भी ईथर्स में वही दिख रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद H2O मॉलिक्यूल्स। नाउ केमिकल रिएक्शंस ऑफ ईथर्स। ईथर में two types of chemical reactions we can see. One is the breaking of the bond between carbon and oxygen. There are two such bonds. When I am telling ether is carbon, oxygen and carbon linkage. So there are two types of breaking, this way or this way. Such reactions are with HX. We will see one by one how the reaction proceeds. Another type of reaction is the electrophilic substitution reaction.
electrophilic substitution reaction occurs in a system which has excess of electron. Generally, aromatic system, so alkoxybenzene system, it's an ether. So when I write alkoxybenzene, alkoxy means OR to a benzene system. Now the lone pair above oxygen goes into resonance, and it actually, on account of plus R effect, activates the ortho-para position for electrophilic substitution reaction. And the para product is the major product. Such examples of electrophilic substitution reactions are halogenation, Friedel-Crafts reaction, nitration. Now, one by one, we will see the reactions. First one, I will say the breaking of carbon-oxygen bond, reaction with HX. Now, if I consider symmetrical ether, say ROR, when it reacts with HX, we have to see the way the bond breaks. We can assume that any side, because both the side of oxygen atom is same, we are assuming any one side the bond is breaking. To the oxygen side H is attaching, and to the other side X is attaching. So what I get over here is Rx and ROH. That is what I will write, Rx and ROH. Now, if the HX that is provided is in excess and at high temperature, then this ROH will react further. It will again react with another mole of HX. And then again, what will happen is H gets added here, X gets added here. So we have seen this is Rx. So this is Rx, another mole, plus this side H2O. So with 1 mole of HX, we got Rx and ROH. With another mole, this is 1 mole of HX, and this is another mole of HX. So with another mole, we got again Rx plus H2O. So I can say if I am using excess of HX, then both the step can be combined, and I can write 2 moles of Rx plus H2O, because ROH will again react and give you Rx plus H2O. So if I say excess of HX, then I am assuming ROH has already reacted. Now this was when I am considering symmetrical ether. Suppose I consider unsymmetrical ether. So this is one. The other one for unsymmetrical ether, ROR dash, is unsymmetrical ether. And I am assuming the bulk factor of R dash is greater than that of R. If the bulk factor of R dash is greater than that of R, I give 1 mole of HX. Then remember that the side which is less bulky, that is R side, is holding the X, and the other side is holding H. So now the products are Rx plus R dash OH. Now again, if HX is in excess, then this can again react. If excess, so always remember this is a condition if excess. Then again what will happen? Again this part will break. Oxygen will hold H, R dash will hold X. And so I will get R dash X plus H2O. So finally what we got is Rx, R dash X and H2O. If I use excess of HX. Suppose this is A, B and the C part. Suppose I take alkyl aryl ethers, that means alkoxybenzene. See, this is the aryl system OR.
So this is an example of alkyl aryl ether. So for this type of compound, when I give HX, remember on account of the partial double bond character of carbon oxygen bond, यहाँ पे partial double bond character है, that's why the bond will not break so easily. तो break अगर होगा तो यहाँ पे break कीजिए and then you add X here and H here. So what will be the products? The products will be phenol, this is phenol, and RX. Remember कि इससे पहले जब अल्कोहल बना था तो अल्कोहल के लिए ये यहाँ पे अल्कोहल बना था, यहाँ पे एक्सेस ऑफ HX में रिएक्शन हुआ था, लेकिन ये जो फेनॉल सिस्टम है इसमें एक्सेस ऑफ HX में रिएक्शन नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ द पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड. ये ब्रेक नहीं करेगा इजीली. सो द रिएक्शन प्रोडक्ट्स विल बी फेनॉल एंड RX only. Now the order, reactivity order also depends on the type of HX, because here HI has a greater reactivity than HBr than HCl. इसको समझने के लिए एक तो HI का बॉन्ड एंथैल्पी इज लो और दूसरा we need to see the mechanism of the reaction. The breaking of ethers takes place with concentrated HI or HBr at high temperature. क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जो कि बहुत ही लेस रिएक्टिव माना जाता है और है. So under drastic condition it reacts. So let us see the mechanism of the reaction. ये है mechanism of the reaction of R dash with HX. With HX. तो पहला जो स्टेप है वो रिवर्सिबल स्टेप है. हम देख रहे हैं वहाँ पे HX का रिएक्शन जो होता है ऐसे होता है कि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर के वजह से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होता है और X माइनस रिलीज होता है. तो जिसके कारण क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे R डैश एक लोन पेयर यूज हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज आया, दूसरा लोन पेयर है लेकिन प्रोटॉन के साथ बॉन्ड भी है और साथ में X माइनस. तो यही देखा गया है स्टेप 1 में, यहाँ पे. तो स्टेप 2 में क्या हो रहा है? स्टेप 2 में ना ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है और मैकेनिज्म देखिए SN2 मैकेनिज्म है. तो स्टेप 2 ये है स्टेप 1. स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहाँ पे हो रहा है? जहां पे लेस हिंडर्ड है. इफ आई कंसिडर कि R डैश इज मोर हिंडर्ड देन R, तो लेस हिंडर्ड तो R हुआ, उसके हिसाब से R के साइड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा. R के साइड में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और क्या होगा ये देखिए, एंड दिस विल बिकम न्यूट्रल. ऑक्सीजन विल बिकम न्यूट्रल. X माइनस का न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर भी डिपेंड है. देखिए आयोडाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, इसीलिए द रिएक्टिविटी वाज HI ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन Cl माइनस माने HCl. इसका रीजन क्या था? नॉट ओनली बॉन्ड एंथैल्पी. बॉन्ड एंथैल्पी तो जरूर है, यहाँ स्टेप 1 में तो बॉन्ड एंथैल्पी लो होने से रिएक्टिविटी ज्यादा जरूर होगा, लेकिन आयोडाइड का न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है इसलिए रिएक्टिविटी भी ज्यादा है. तो X माइनस लेस हिंडर्ड साइड पे अटैक कर रहा है, करके क्या बनाया, यहाँ पे ये SN2 मैकेनिज्म है देखने को मिल रहा है. क्यों SN2 है?
क्योंकि न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है और लीविंग ग्रुप भी लीव कर रहा है सबस्ट्रेट को, तो RX बना और लीविंग ग्रुप क्या है R-OH अल्कोहल। तो यहां भी वही हुआ, ये देखिए यहां पे अटैक हुआ, यहां पे अटैक हुआ और ये बना ऑक्सीजन न्यूट्रल और ये है ट्रांजिशन स्टेट, ये ट्रांजिशन स्टेट है, SN2 रिएक्शन है। तो ये अटैक के कारण यहाँ पे CH3I बना और ये पार्ट CH3CH2OH, ये है CH3CH2OH। अगर एक्सेस ऑफ HI है तो यहाँ पे क्या होगा, अगर एक्सेस ऑफ HX होगा तो ये जो अल्कोहल है ये एक्सेस ऑफ HX के साथ दोबारा रिएक्शन करेगा। कैसे, वही होगा ना कि ऑक्सीजन, तो ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल होगा, जैसे शुरुआत में हमने देखे हैं कि ये रिवर्सिबल होगा। फिर क्या होगा, द लोन पेयर अबव ऑक्सीजन विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन और ये बॉन्ड X- बनाएगा। तो क्या बनेगा X- और यहाँ पे R-OH ऑलरेडी था, तो एक पॉजिटिव चार्ज हुआ, लोन पेयर दूसरा H लिया और साथ में X-, तो X- क्या करेगा, X- फिर से R- में अटैक करेगा, न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल को छोड़ देगा। तो क्या कैसे बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पे R-X और न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल, यही होता है। क्योंकि ये जो है ना ये फिर प्रोटोनेटेड अल्कोहल हुआ, ऑक्सोनियम आयन, और इसीलिए उसका R- पार्ट जो है वो ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव कैरेक्टर है उसका, तो इसीलिए X- विल अटैक R- और न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल विल कम आउट। तो ये है आपका स्टेप 1, जहां पे ये न्यूक्लियोफाइल, या आप बता सकते हैं कि ईथर विथ ये ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन होता है और HI जैसा है I- को रिलीज करता है। अभी ये I- इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, यहाँ पे अटैक कर रहा है। फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल अल्कोहल दे रहा है। अगर एक्सेस ऑफ HI है या HX है तो ये जो अल्कोहल बना दोबारा इसका प्रोटोनेशन होके प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना और ये I- अटैक यहाँ पे दोबारा हो रहा है। So the final products will be what? The final products will be RX, R-X और H2O। अगर HX जो है वो एक्सेस में है तब ये बनेगा ऐसा। अब ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर मिथाइल है, इथाइल है, तो मैकेनिज्म जैसे देखे है वैसा होगा। लेकिन अगर ऑक्सीजन के एक साइड में 3 डिग्री कार्बन है, ये ऑक्सीजन के इस साइड में 3 डिग्री कार्बन है, तब रिएक्शन पाथवे जो है ना ये बदल जाएगा। कैसे, यहाँ पे HI जो प्रोटोनेशन होगा तो लोन पेयर जो है ऑक्सीजन के ऊपर ये प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, I- विल लीव। ओके, लेकिन ऐसा होगा कि प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन करने के बाद जो बनता है, जैसे ये CH3 होल थ्राइस, ये ऑक्सीजन को प्रोटॉन मिला, पॉजिटिव चार्ज हुआ, एक लोन पेयर है, साथ में CH3 है। अब ये रिएक्शन पाथवे जो है वो SN2 जैसा नहीं होगा जो पहले हमने देखा, अभी ये SN1 जैसा जाएगा, क्योंकि यही रिएक्शन स्लो RDS स्टेप है इस रिएक्शन का, तो ये कार्बोकैटायन बनाएगा। क्यों बनाएगा,
क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन बनेगा 3 डिग्री से विल बी मोर स्टेबल. सो ये मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा. ये रहा वो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन. ये है 3 डिग्री कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल है. और न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो निकला वो है CH3OH, अल्कोहल है. अब क्या होगा? अब तो मीडियम में I माइनस है ना, ये तो I माइनस है मीडियम में, तो ये जो I माइनस है वो अटैक करेगा. I माइनस विल अटैक. तो I माइनस अटैक, ये स्टेप जो है ये फास्ट स्टेप है, ये यहाँ पे अटैक करेगा. तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3, यहाँ पे CH3 और I, और साथ में अल्कोहल जो था वो है. अगर एक्सेस ऑफ HI है या HX है तो ये दोबारा रिएक्शन करेगा जैसे हमने पहले देखे हैं. लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिमिलर ग्रुप्स है तो प्रोडक्ट विथ HX विल बी, किसी भी एक तरफ बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन के साइड में H और दूसरे तरफ में X, तो बनेगा ROH एंड RX. अगर एक और मोल रिएक्शन होता है तब ऐसे फिर से टूटेगा, ऑक्सीजन की तरफ H और यहाँ पे X, और बनेगा RX प्लस H2O. वही देखिए, ये है RX और ये है H2O. लेकिन अगर हमारा एक साइड जो है ऑक्सीजन का अनसिमेट्रिकल ईथर है और ये साइड बल्कि है, तो लेस बल्कि साइड में ना हैलोजन को डालिएगा, दूसरे तरफ H, तो देन यू विल गेट RX और R-OH. और ये अगर एक्सेस ऑफ HX के साथ रिएक्शन करता है तो फिर दोबारा वैसे ही टूटेगा, ऑक्सीजन के साथ H, R- के साथ X, और ये बनेगा R-X प्लस H2O. ये समेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट है. अगर एक साइड में बेंजीन रिंग है तो एल्काइल एरिल ईथर, यहाँ पे ध्यान रखिए कार्बन ऑक्सीजन का पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो टूटने से यहाँ पे टूटेगा ना, तो R- विल होल्ड X, ऑक्सीजन विल होल्ड H, तो क्या बनेगा? HX के साथ बनेगा फेनॉल, जो कि दोबारा नहीं टूटेगा, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ऑफ कार्बन ऑक्सीजन एंड R-X. ऐसे अगर ऑक्सीजन के एक साइड में 3 डिग्री कार्बन है, ये एग्जाम्पल था, ऑक्सीजन के एक साइड में 3 डिग्री कार्बन है, दूसरे साइड में 1 डिग्री मिथाइल हो या 1 डिग्री हो, तो क्या होगा? ये ऐसे टूटेगा इस साइड में, और जो 3 डिग्री है वहां पे X और दूसरे साइड में H, तो क्या मिलेगा? CH3, यहाँ पे एक CH3, ये भी CH3, यहाँ पे X और CH3OH. अगर एक्सेस रिएक्शन हुआ HX के साथ तब बनेगा CH3X और H2O. कैसे बना? यहाँ पे टूटा ना, तो ये रहा H और ये रहा X. तो ये है समेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट. ये 1, 2, 3, 4 रिएक्शन को ध्यान से देखिएगा फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. अब है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. अभी ये एरिल एल्कोक्सी ईथर्स में ना, ये जो है देखिए, द लोन पेयर अबव ऑक्सीजन गोज इनटू रेजोनेंस. ये जो लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व है, इसीलिए ये ऑर्थो पोजिशंस और पैरा पोजिशंस में नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज, सी ऑर्थो पोजिशन, पैरा पोजिशन, ऑर्थो पोजिशन. सो इट इज एक्टिवेटिंग
एक्टिवेटिंग क्यों? क्योंकि बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इंक्रीजिंग, सो OR ग्रुप इज एक्टिवेटिंग एंड इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल को इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन में ओरिएंट करेगा और पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें एग्जाम्पल या टाइप्स में क्या है? पहला है हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन ब्रोमीन इन इथानोइक एसिड में ये रिएक्शन है। इसमें FeBr3 की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काफ़ी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो OR है इसके जगह पे इफ आई राइट OCH3, इसका नाम है एनिसोल। एनिसोल में ब्रोमीन इन इथानोइक एसिड अगर देना है CH3COOH, तो पैरा प्रोडक्ट विल हैव ऑलमोस्ट 90% यील्ड, मतलब पैरा प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थो बनेगा लेकिन पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। इसके बाद हैलोजिनेशन के बाद फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन है। तो ये जो है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन को देखते हैं। तो फ्रीडल-क्राफ्ट का पहले एल्काइलेशन देखते हैं। एल्काइलेशन मतलब एल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रोफाइल एल्काइल सब्स्टिट्यूशन होना, माने R+ ग्रुप आना। तो ये है एनिसोल। एज एन एग्जाम्पल वी हैड टेकन एनिसोल, सो OCH3। यहाँ पे क्या है? आई एम एडिंग RCl in presence of anhydrous AlCl3। तब कैसे? लुईस एसिड कैटलिस्ट है anhydrous AlCl3, तो पैरा प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट OCH3। यहाँ पे एल्काइल ग्रुप, ये है मेजर प्रोडक्ट। पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। तो अगर ये CH3 है, R इज इक्वल टू CH3, तो the product will be what? Major product will be 4-methoxy, ये 4 है, 4-methoxy toluene। अगर ये R is CH3 तब ये बनेगा 4-methoxy toluene। तो ये रहा एल्काइलेशन। और एसाइलेशन में देखते हैं। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आएगा ऑब्वियसली। तो ये है एनिसोल का स्ट्रक्चर। दोबारा आई एम ड्रॉइंग इट, इट इज OCH3 नाउ इन प्रेजेंस ऑफ। चलिए एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप CH3 C डबल बॉन्डेड OCl मैं लिखती हूँ। इसमें RCOCl इज द जनरल एग्जाम्पल इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड कैटलिस्ट anhydrous AlCl3। तो पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो यहाँ पे अगेन C डबल बॉन्डेड OCH3, ये रहा मेजर प्रोडक्ट। ये है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में एक और भी है, वो है नाइट्रेशन। पता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर लेके नाइट्रेशन बनता है। तो ये है CH3 OCH3 और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ये है नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसके पैरा पोजीशन में होगा, क्या होगा? NO2 and this is your major product. Para nitroanisole is your major product. ये एक सॉल्ट एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा है कि गिव द मेजर प्रोडक्ट चाहिए that is formed by heating each of the following ethers with HI। तो हम देखेंगे कि ये ऑक्सीजन के पहला एग्जाम्पल दोनों साइड में, ये है हमारा R' मोर बल्कि और ये है R। तो व्हाट डिड आई से? मैंने ये बताया था कि जो लेस बल्कि है
वहाँ पे पहले X जुड़ेगा, यहाँ पे I और यहाँ पे H, तो इसीलिए ये है I और दूसरे में H। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के इस साइड में कार्बन इज 3 डिग्री, तो यहाँ पहले एग्जाम्पल में तो SN2 बना था, लेकिन इसमें SN1 मोड होगा, तो क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। बॉन्ड ब्रेक होके जो 3 डिग्री है वहाँ पे I जुड़ेगा और दूसरे साइड में H, तो यही है इसका सल्यूशन। फिर थर्ड वाले में देखिए, थर्ड वाले में ये जो है ना, यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इसीलिए ये बॉन्ड इतने आसानी से नहीं टूटने वाला है, तो यहाँ पे द बॉन्ड विल ब्रेक, ऑक्सीजन विल होल्ड H और दूसरे तरफ I, तो इसीलिए ये है प्रोडक्ट्स। I hope we could discover few facts and explore about ethers. Now I'll say revise the entire chapter in small capsules. I know you people love one shots a lot, but I will say please study topic wise. You will digest step wise, then only your performance will be better. All the best to everyone.